Hello student, good morning and Jai Sri Swaminarayan. From Honeydew, we have studied chapter number 1, The Best Christmas Present in the World, The Tsunami, Glimpses of the Past. Okay, this is Jodie's Phone, A Short Monsoon Diary, The Great Stone Face Part 1 and Part 2. So from this book, 3 chapters are reduced. Which one? Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, the Summit Within, a Visit to Cambridge. Okay, so from this book we have studied total 7 chapter, right? Okay, and some of the poem that are also deducted. Okay, तो वो भी मैंने जितनी पोयम करवाई है वो पोयम और जितने भी चैप्टर करवाए हैं, ये जो चैप्टर है वो आपका लास्ट एग्ज़ाम का फुल कोर्स होगा. सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस आवर कोर्स इज कंप्लीटेड. नाउ वी विल सी अनदर बुक एंड दैट इज जो आपकी वो बुक है उसमें से हम अब इट्स सो हैपन के कुछ चैप्टर बाकी है वो अब हम करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 8 जलेबी. ओके, जलेबीज. सो डू यू नो व्हाट इज जलेबीज? माउथ वाटर्ड, पानी आ गया मुंह में? Yes, of course. It's a sweet dish, is it? So, an honest boy is on his way to school, carrying money in his pocket to pay the school fees. Actually, the boy is going to school with money in his pocket, but money for paying the school fees. The sight of crisp, syrup jalebis in the market excites him and the coins in his pocket being to jingle. Okay, as he was in the way, he saw the jalebis. Okay, उसने जलेबीज देखी. So crispy and syrup मतलब वो चाशनी आती है ना. Okay, sweet जो होती है उस पर लगाई हुई होती है and it made the jalebis sweet. Okay, तो ये जो जलेबी है उसको देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है और जो कॉइन्स उसकी पॉकेट में होते हैं दे स्टार्टेड टू जिंगल, वो भी अब बोलने लगते हैं. आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विथ हिमसेल्फ ही यील्ड टू द स्वीट टेम्पटेशन. सो देर वॉज अ डिबेट. ओके, सपोज के कुछ आप भी कभी कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आप टेम्प्ट हो गए, लालच आ गई, राइट? तो लालच आती है तो ये जो लड़का है उसने अपने ही दिमाग के साथ डिबेट करना शुरू कर दिया. पहले वो कहता है नो 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 इट इज़ नॉट गुड, कि ये तो पैसे किसके हैं? फीस के हैं, तो ये उसको इन्वेस्ट नहीं करेगा. फिर भी दिमाग में आता है कि ना ना चलो ले लेता हूँ. इन दिस वे देयर वॉज अ डिबेट विथ हिमसेल्फ, अपने आप ही डिबेट करता है. ओके, so it so happened many years ago I was in 5th standard at the government school Kambalpur, now called Atak. Okay, so जो राइटर है वो कह रहे हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. ही इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस विथ अस that what had happened when he was in 5th class. Okay, what is the name of city? Kambalpur, now it is Atak. One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. Okay, next one day he went to school and actually on that day he went to school with the money, but money was to pay the fees. When I got there I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave and so the fees would be collected the next day. But what had happened? The teacher Master Ghulam was absent and actually he is the person who will collect the money. So तो अब दूसरे दिन वो फीस ली जाएगी. नेक्स्ट डे द फीस मनी वुड बी कलेक्टेड. ऑल थ्रू द डे द coins simply sat in my pocket. Okay, but once school got over, जैसे स्कूल ख़त्म होती है so even the coins didn't speak. पूरा दिन तो कुछ नहीं बोले ये पैसे coins, but as the school over I was outside, they began to speak. अब पैसे बोलने लगे. हाँ, who began to speak? Coins. All right coins, don't talk.
तो ये जो नरेटर है वो बोलते हैं कि चुप रहो, कुछ नहीं बोलना है, डोंट टॉक। दे जिंगल और गो खनक खनक। ओके, खनक खनक is a sound of coin, right? But I am telling you that day they actually spoke. Yes, narrator is telling. Actually, the coins were telling something. One coin said, "What are you thinking about? क्या सोच रहे हो? Those fresh hot jalebis coming out of the कढ़ाओ in the shop over there." कढ़ाओ मतलब वो एक जो कढ़ाई होती उसमें से स्वीट स्वीट जलेबी जो है, हाँ, हॉट हॉट जलेबी, गर्मा गर्म फ्रेश जलेबी जो है वो बाहर आ रही है कढ़ाओ में से। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वो ऐसे ही थोड़ी ना आ रही है। जलेबीज आर मींट टू बी ईटन, जलेबी मतलब खानी होती है। एंड दोज विथ मनी, और वो भी पैसे से। अब नरेटर के पास पैसे किसके थे? जो स्कूल की फीस है उसके थे, राइट? सो इन मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम। सो वन ऑफ द कॉइन सजेस्ट द नरेटर दैट कि वो जो पैसे है ना, ये पैसे से उसको जलेबी खरीदनी है। एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, पैसे किसके लिए होते हैं? खर्च करने के लिए। मनी इज मेड टू स्पेंड एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक्स जलेबी। एंड बट वेयर टू स्पेंड, कहाँ खर्च करे? हु लाइक्स जलेबी, जो जलेबी को पसंद करता है उस पर स्पेंड करना होता है। ओके, सो जलेबी इज टू ईट एंड मनी इज टू स्पेंड। जलेबी खाने के लिए और मनी जो है वो खर्च करने के लिए। लुक हियर यू 4 रुपीज आई सेड टू देम। सो नरेटर क्या कहते हैं? मैंने उसको बोल दिया, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी, मुझे मिसगाइड मत करो। इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। आई गेट सो मच एट होम that I consider even looking at something in the bazaar a sin. I get so much at home. मुझे तो घर पर सब कुछ मिलता है। And I consider even looking at something in bazaar is a sin. बाजार में इस तरह से यहाँ वहाँ लुकिंग करना और इस तरह से देखना एक पाप है। सीन मतलब पाप, evil things. Besides means उसके अलावा। Besides you are my fees and fund money. So here there is a debate, okay, between coins. मतलब ये पूरी आर्ग्यूमेंट हो जाती है किसके बीच में? नरेटर और पैसों के बीच में। ओके, एंड नरेटर सेड दैट ही इज अ गुड बॉय। और ये पैसे किसके लिए? फीस और फंड के लिए। इफ आई स्पेंड यू टुडे देन हाउ शेल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमोरो and after that to Allah Mia at Qayamat. So narrator is saying if he will spend the money on jalebi then what will he answer to Ghulam Muhammad? हमारे उसके जो मास्टर है उसको क्या जवाब देंगे? और कयामत के दिन जब ओके स्टूडेंट, व्हाट इज कयामत? तो कयामत क्या होती है? इंसान जब मर जाता है तो उसको कब्र में दफनाया जाता है। फिर एक दिन क्या होता है? कयामत का दिन आता है जब अल्लाह मियाँ जो है वो सबसे न्याय देते हैं, राइट? तो उसको कहते हैं कयामत। ओके, सो द चाइल्ड और द नरेटर had said that how can he show his face to Ghulam Muhammad if he spent money on jalebi, right? And how can he show the face to Allah Mia when there will be Qayamat? You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, if he will not able to pay the fees, Ghulam Muhammad is an angry teacher. Okay, वो बेंच पर खड़ा कर देंगे। He simply forgets to let you sit till the last bell ring. Okay, and Ghulam Muhammad will not allow me to sit on bench until the last bell ring. So it's best you stop chewing at my ear like this and let me go home straight. So narrator had said to the coin कि मेरे पास है ना, अब आप है ना च्यूइंग एट माई ईयर्स मीन्स मेरे पास यहाँ पर बकबक करना बंद कर दो और मुझे घर जाने दो। ओके, वो कॉइन से कह देते हैं।
The coins disliked what I had said so much that all of them began to speak at the same time. So the coins disliked. जैसे ही नरेटर ने कहा ना मुझे घर जाने दो तो वो बहुत चिढ़ गए और सबके सब चारे चार कॉइन एक साथ बोलने लगे. There was such a clamor that passer-by in the bazaar stared. So they were making so much noise. तो पासर बाय जो भी आसपास से गुजर रहे थे वो भी मुझे स्टेयर करने लगे, घूरने लगे. Eyes wide with surprise. The people were surprised to see कि कोइंस बोल रहे और देखो कैसे चिल्ला रहे. So the people were staring the narrator and those people were surprised at me and my pocket. So people were surprised. हाँ, किसको देखकर? नरेटर को देखकर और उसकी पॉकेट को देखकर. The coins of those days, the wretched things, बहुत सबसे बुरी बात थी वो कोइन के लिए. wretched सबसे बुरे. Made so much more noise too. कितना आवाज कर रहे थे. Finally in panic, अब मैं गुस्सा हो गया और डर गया. I grabbed all four of them. मैंने उसको एकदम से होल्ड करके पकड़ के रखा. And held them tight in my fist and then they were silent. तो इतना मैंने उसको ग्रेब्ड करके और पकड़ के रखा, टाइटली होल्ड करके रखा. Then they become silent. Yes, you can see in picture. People are staring at the narrator and at his pocket. You can see here. Okay. So in this way there was an argument between narrator, the child and the coins. Okay. After taking a few steps, I loosen my grip. Loosen वो थोड़ा जो होल्ड करके रखा था वो थोड़ा लूज हो गया. ग्रिप होल्ड. Immediately the oldest coin said, "Here we are trying to tell you something for your own good and you try to strangle us instead." अरे हम तो तुम्हारे भले की बात कर रहे. हम तो ऐसा चाहते हैं कि तू हमको यूज करो और ये पैसों से तुम जो है वो हॉट जलेबीज खरीदो. ओके. यहाँ पर एक वर्ड है स्ट्रेंजल. ओके. STRANGLE. इट मीन्स इंजर्ड बाय स्क्वीजिंग द नेक. और तुम हमें इस तरह से पकड़ कर रख रहे हो. ट्राई टू स्ट्रेंजल अस इंस्टेड इतना हमको ग्रीप होल्ड करके रख रहे हो, इतना परेशान कर रहे हो. हम तो तुम्हारे भले की बात कर रहे. टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज. कोइंस कहते हैं अब ऑनेस्टली बताओ तुझे आपको भी क्या जलेबी नहीं खानी. एंड देन इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, विल नॉट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो. एज ये जो नरेटर है ना उसको नेक्स्ट डे स्कॉलरशिप मिलने वाली थी. राइट. तो कहते हैं कि वो मनी से तुम फीस भर देना. स्वीट विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी. ओके. जो फीस के पैसे आए हैं वो स्वीट पर खरीद दो और जो स्कॉलरशिप मिलेगी उससे फीस भर देना. ये स्टूडेंट ये बात बार बार आएगी. विच वन? स्वीट विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप. ओके. एंड ऑफ स्टोरी. किस्सा खत्म, पैसा हजम. तो in this way coins had explained and tried to convince the narrator कि उसको स्पेंड कर दे. किस पर? जलेबी पर. What you are saying isn't right, I replied. कि आपने जो कहा ना is not right, वो सही नहीं है. But it isn't that wrong either. इतना गलत भी नहीं है क्योंकि वो जलेबी तो खाना चाहता था. Listen. Stop balbering and let me think. अब balbering means बकबक करना छोड़ दो. Let me think, मुझे सोचने दो. I'm not a common sort of boy. कि जल्दी से easily मैं मान जाऊँ ऐसा लड़का मैं नहीं हूँ. But then those jalebis are no common sort of jalebis. But ये जलेबी तो ऐसी वैसी जलेबी नहीं है. They are crisp, fresh and full of sweet syrup. बच्चों आ गया ना मुंह में पानी. माई माउथ वाटर्ड. मेरा मुंह
पानी से भर गया, मुंह में पानी आ गया. But I was not about to be swept away so easily. But I was not a common boy and convinced easily. In school, I was among the most promising student. Means he is first rank child. Okay, वो उसका रैंक फर्स्ट आता था और एक सिंसियर लड़का था, डिसिप्लिन में मानने वाला लड़का था. In the 4th standard exam, I had even won the scholarship of 4 rupees a month. Okay, so when the narrator was in 4th class, he also got the scholarship. Now you should know that what is scholarship. तो पहला या दूसरा या तीसरा नंबर आता है तो स्कॉलरशिप मिलती है. ओके, क्या स्कॉलरशिप मिलती है? तो जितनी फीस होती है उतने ही पैसे मिलते हैं, दैट इज स्कॉलरशिप. बिसाइड्स मीन्स उसके अलावा आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेल टू डू फैमिली. मैं एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता हूँ. सो आई कॉन्ट्ररी मीन्स ऑपोजिट. सो आई इंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज. हमारे जो फैमिली है उसकी एक अच्छी प्रतिभा है, अच्छी एक फैमिली है, तो हमेशा मैं एक अच्छे खानदान से हूँ तो मैं इंजॉय करता हूँ. I would never once been beaten so far, and he was never beaten by anyone. On the contrary, Masterji had got me to beat the other boys. Okay, Masterji had got me to beat the other boys. Sometimes टीचर का काम भी बच्चे कर देते. टीचर कहते ना मेरे बदले इसको थप्पड़ दे दो. Okay, for a child of such status, कितना अच्छा मेरा स्टेटस है. Standing there in the middle of the bazaar eating jalebis. बाजार में रहकर मैं क्या जलेबी खाऊं? नो, इट वॉजंट राइट. ये तो सही बात नहीं है. आई डिसाइडेड, आई क्लिंच्ड द रुपयास इन माई फीस्ट एंड केम होम. ओके, सो ही हैड क्लिंच्ड द रुपयास मीन्स उसने वो पैसा है अपने हाथ में एकदम से पकड़ कर रखा और वो घर पर आ गए. सो स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टॉपिंग हियर. ओके, इवन यू कैन सी इन पिक्चर. See, there is a child who is purchasing the hot jalebis. तो वो क्या बाद में वो खरीदता है कि नहीं खरीदता? ओके, और इस तरह से बाजार से लेकर रास्ते में खाना वो सही बात है या नहीं? वो खुद ने ही कहा है कि इट इज़ नॉट गुड टू ईट इन द बाजार. इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज. एक हमारी प्रतिभा की बात होती है. सो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे कि नरेटर ने वो जलेबी खरीदी कि नहीं खरीदी. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.